Hello friends. In a series of Python learning, today we will learn about uh, problem solvings, algorithms, flowcharts, pseudocodes, and many more. Uh, for today's lecture, I am referencing uh, ncrt.nic.in, in which you are provided with lot of materials regarding Python's problem solving. And second one is again, that is one of my friends uh, who prepared this beautiful topics with good material over the Python 4 csp.com. I'm using the both reference for reference, and Python for Python we are you can use Sumita Arora also. So let us start. Introduction to problem solving. Okay, we'll go towards problem solving. What is problem? So first of all, we have to know what is problem. Then we can able to solve it. Na? In our daily life, we are fighting with different types of problems. Uh, Maybe problem of learning, problem of searching, and so many problems. As per your age, there are different types of problems for teachers. There are different types of problems for students. There are different types of problems. Got it? So, what is problem solving? Problem solving is a process of transforming the description of a problem into solution of that problem by using knowledge of the problem domain and relying on our ability to select and use appropriate problem solving strategies, techniques and tools. मीन्स अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट we'll switch to SDLC, that is software development life cycle, in which we have to go through, we have to move towards the solution. So SDLC stands for software development life cycle, that is in which we have to have some requirements, because जब तक हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जब तक हम कोई काम नहीं करते. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आप सबने सुना. तो हमें रिक्वायरमेंट क्या, हमें प्रॉब्लम, हम क्यों, क्या हम पहले क्या होता था कि सब काम हैंड रिटन होते थे, रजिस्टर्स मेंटेन होते थे. लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी कि वो रजिस्टर मेंटेन होते थे लेकिन उनको सर्चिंग में किसी डॉक्यूमेंट को कुछ चेंज करने में बहुत टाइम लगता था. तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को, हम किसी काम को जल्दी से जल्दी कर सके. तो क्या हुआ, कंप्यूटर ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए जिसके थ्रू हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. तो उन्होंने क्या किया, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट को एनालिस किया होगा, फिर डिज़ाइन किया होगा, फिर उसको कोड किया होगा, फिर टेस्टिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन. हम ये रेफरेंस बता रहे हैं अगर सपोज हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाते हैं. नहीं तो जनरली होता तो यही है ना. यस. अब व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स? Requirements can be described as what the problem is, what is the needed to solve it, what the solution should be, if there are constant and special conditions. Yes. Analysis. Analysis means it can be divided into input and outputs to the problem, their forms and input media to be used. Outputs expected from the problem, their forms and output media to be used. Special constant or necessities conditions.
formulas or equations to be used. Design. In design phase, we design a proposed solution without writing a computer program by using technique, that is such as algorithm, pseudocode, flowcharts. अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर में कोडिंग होती क्या है। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है। कोडिंग कोडिंग मीन्स अगर हमें किसी काम को कंप्यूटराइज करना है तो हमें उसको कुछ उसके लिए एक कोड होगा। कोड मीन्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करेंगे, सपोज सी या सी प्लस प्लस और पाइथन। हम क्या करते हैं, पाइथन में हर जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कोड करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम डायरेक्ट कोड नहीं करते हैं। हमें किसी भी कोडिंग के लिए एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमें उससे पहले कुछ कुछ एक नए नाम सुनेंगे आप लोग, एल्गो, फ्लो चार्ट, सीडियो कोड्स, कुछ इनकी हेल्प लेनी पड़ती है और लास्ट में जाके हम एक अच्छा सा कोड लिख सकते हैं। यस, चलिए इसको समझते हैं। कोडिंग, what is coding? It is a process of transforming design in a computer program using any language। जैसे अभी बताया हमने, ना पाइथन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं जैसे आप सब। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी द सॉल्यूशन ऑफ इंटेंडेड प्रॉब्लम। जो हमने प्रॉब्लम हमारे सामने है, कोड के थ्रू हम उस प्रोग्राम को से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे सॉल्यूशन तक हमें लेके जाए। यस, अब प्रोग्राम हम की कोडिंग कर ली है, तो कोडिंग कर ली इसका मीन्स क्या हुआ, क्या हमारा प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल हो गया? यस और नो, मे और मे नॉट बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कोड को टेस्ट भी करना पड़ेगा। यस, तो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। टेस्टिंग मीन्स प्रोग्राम टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स करेक्टनेस। प्रोग्राम वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ensuring that program meets user requirement। मीन्स, और एक चीज़ याद रखिए, अगर हम किसी प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कोई टेस्टिंग पे हमारा प्रोग्राम आउटपुट सही दे, लेकिन सेम प्रोग्राम एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ जाए। जैसे कि सपोज हम किसी एक प्रोग्राम बनाया हमने किसी दो नंबर को डिवाइड करने का। आइए देखते हैं, हम पाइथन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पाइथन स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है पाइथन कैसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। यस, पाइथन जस्ट इंस्टॉल हो चुका है, बस लोड हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम की। अगर एक प्रोग्राम हम बनाते हैं और वो प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे तो ट्रू हो सकता है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज पे वो ट्रू हो, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। यस, जैसे कि सपोज हमने एक फंक्शन बना रहा है, फंक्शन से x इक्वल्स टू से 10, y इक्वल्स टू से 2, और एक प्रोग्राम बनाया हमने z इक्वल्स टू कोडिंग डिवीजन के लिए x डिवाइडेड विद y, प्रिंट z। यस, ये फंक्शन को कॉल किया, आंसर आप सबके सामने है, आंसर आया 5। क्या किया हमने, एक वेरिएबल में x की वैल्यू स्टोर की, दूसरे वेरिएबल में y की वैल्यू स्टोर की और z में हमने उसको डिवाइड कर दिया, x डिवाइडेड y। यहाँ पे x और y की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है z की वैल्यू। अगर सपोज किसी यूज़र ने y की वैल्यू 0 दे दी होती तो एक्सपेक्ट करते कि आउटपुट आता। यस, नॉट डिफाइंड मीन्स प्रोग्राम हमारा चल रहा
लेकिन हमें टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। यस। यस। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? डॉक्यूमेंटेशन कंटेन्स डिटेल्स produced at all stage of the program development, can be done in two ways: writing comments or creating separate files. Yes friends, हम डॉक्यूमेंटेशन दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम जैसे पाइथन में करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स में ट्रिपल स्टार लिख के हम उससे बारे में कुछ लिख सकते हैं, या अलग से एक टेक्स्ट फाइल उस कोड के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस मॉड्यूल के साथ दैट इज उस फोल्डर में जोड़ सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे कुछ वो फ्रेंड्स जिन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे प्रोग्राम को यूज़ करेंगे, हमारे प्रोग्राम के बारे में उनको समझ आएगा। आगे चलते हैं। एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम्स? Algorithms is a list of steps to be executed with right order in which steps should be executed. Yes, means हमें जो काम कर रहे हैं, हमें कोई भी काम करना है, तो हमें जो काम करना है उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे कि सपोज हमें सुबह उठना है, उठ के फ्रेश होना है, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करना है, तैयार होके स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ के घर आना है, घर आके थोड़ा करके कुछ खा के थोड़ी देर नैप लेके फिर पढ़ना है और फिर रात को सोना। लेकिन अगर इसके स्टेप थोड़ा ऊपर नीचे कर दें कि अगर हम सुबह उठते हैं, उठ के स्कूल जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नैप लेते हैं, फिर सोते हैं और फिर स्कूल जाते हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। सो एल्गोरिथम मीन्स एक करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी राइट। An algorithm has fixed number of steps. Each steps in algorithm specify the action to be performed. The steps in an algorithm specify basic operations. An algorithm accepts input data. An algorithm generates one or more output after the input is processed. Yes. एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि हम हमारे फ्रेंड्स से मिस्टर विनोद कुमार वर्मा एंड सचिन भारद्वाज ने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है। हमें लगता है इसको यूज़ करना चाहिए सबको भी। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने बनाए हैं, रियली गुड। क्योंकि इतना इतना प्रेशर के बाद भी इतना टाइम निकाल के इसको बनाना आसान नहीं है एक टीचर के लिए। सो हमारा है एल्गोरिदम्स के पे, अगर हम एटीएम पे जाके पैसा निकालते हैं तो पैसा कैसे निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक स्टेप होगा। यस और नो फ्रेंड्स? यस। वो स्टेप्स क्या होंगे आप सोच सकते हैं? हाँ, सोच सकते हैं। क्या होगा? स्टार्ट द एल्गोरिदम्स, गो टू एन एटीएम local machine, insert, swipe your ATM card, press the language button, enter the PIN code, press the account number type, press the cash withdrawal button, enter the amount you want to withdraw, collect the amount, collect the statements, collect your ATM, and the algorithms. This is the correct steps. So आपके लिए होमवर्क है, algorithm of getting, or I'll change, write an algorithm to make tea. Yes, tea or coffee. There are different assignments for you. Please, I am stopping this lecture for a seconds. Better to, you can also pause and rotate these homeworks, and you can make algorithms. Yes. And if you are having problem, I'm showing you the solution. Just pause it and see them. The first, second. This one is third. Yes.
Next one is flowchart. What is flowchart? Flowchart is a graph used to depict or show a step-by-step solution using symbol which represent a task. Means friends कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एल्गोरिदम्स है, फ्लो चार्ट्स मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं एल्गोरिदम के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, उसी को हम पिक्चर्स फॉर्म में पिक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं, वो कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट. Symbol use consists of geometrical shape that are connected by flow lines. Yes, it is an alternate to pseudocoding, where pseudocode description is verbal, a flowchart is a graphical in nature. On the other hand, pseudocode is a verbal. Yes. Advantages: its help in analyzing the problem effectively. It acts as a guide during the program development phase. It helps easy debugging of logical errors. Disadvantage is also there. A lengthy flowchart may extend over multiple pages with reduce readability. Drawing a flowchart is time consuming. Time consuming. The changes made to the single step may cause withdrawal the entire flowchart. Yes. So next, have you ever think about that how our railway department will work? Railway department is working in definitely with too complex data. Railway means railway or air or whatever it may be. Means transportation. For transportation, maybe railway. It's definitely within second. What maybe happen, we don't predict. So let's move to next. These are flowchart symbols. There are different symbols. Terminals, process, input, output, disk, storage, primary outputs, selection, off-page connector, on-page connector. Do you know what's the difference between on-page connector and off-page connector? Connector. Off-page connector provides continuation of a logical path on another page. On-page connector it provides continuation of logical path on another point in the same page. That is same page or different page. This is a flow line. We show the flow of our flowchart. Same way, what we already done prepared an algorithm for of how to withdraw money from ATM. For the same program, we are having this flowchart, start symbol, this is input, insert this for processing, press the language button, yes. Over here, same way, what's this? Input or output के लिए प्रोसेसिंग और दिस इज एक व्हाट्स दिस कनेक्शन. यस, हमारा पेज यहाँ पे खत्म हो गया, हमें कंटिन्यू करना उसी पेज पे. हमने उस सिंबल के साथ स्टार्ट किया. ये सिंबल है जिससे हम उसकी कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं. यस, पॉज कर रहे हैं, आप पॉज करिए, इसको समझिए कि डिफरेंट शेप्स और इसके बारे में थोड़ा शेप्स के बारे में और सर्च करिए आप. टू एक्सेप्ट ए नंबर इंक्रीमेंट बाय 1 कैसे होगा फ्लो चार्ट. स्टार्ट किया एक्सेप्ट ए नंबर, यस, ऐड 1 टू इट बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्रोसेस के लिए है, रेक्टेंगुलर प्रोसेस के लिए. Display the number just for output. Here accept a number is input. Display the number is also, it may be input output, but here it's work as a output. This is symbol for stop. Yes. So students, I hope so आपको क्लियर हो रहा होगा.
आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज pseudo code. What do you mean by pseudo code, friends? Tell me. Anybody knows? Yes. Okay. Pseudocode is a formal way of writing a program logic, whereas algorithm is an informal way of writing a program logic. As we already discussed, actually pseudocode and flowcharts are flowchart, that is algorithms and pseudocodes are same, but difference is there. What's the difference? It's a formal way of writing a program logic. Pseudocode. एल्गोरिदम में क्या करते हैं, इनफॉर्मल वे में राइटिंग करते हैं. इट इज डिटेल येट इजी डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एल्गोरिदम मस्ट डू. एल्गोरिदम अगर हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको समझना पड़ता है हमें कैसे एल्गोरिदम्स लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो इट इज pseudocode is detailed but yet is easy description of what algorithm must do. It is written in formal, stylish English language. It is used as initial steps in the process of development of the program. Provide detailed template to the programmers. It is a language independent. That is, it can be converted to program by using programming language. Yes, it's one of the good points. In pseudocode, we can use few special words such as accept input, display print, if else, repeat, starts, and go, and so many. Suppose example, अगर हमें एक pseudo कोड बनाना है दो नंबर्स को सम करने का, तो हम कैसे बनाएंगे? That is to input two numbers and display the sum. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, यस, इनपुट करना. इनपुट एक कीवर्ड है, हमें लिखना ही पड़ेगा इनपुट, यस, ए कॉमा बी, टोटल इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट क्या करवाना है, टोटल, एंड प्रोग्राम खत्म. ये यहाँ पे हमने pseudo कोड का यूज किया है, ना कि एल्गोरिथम्स का. To enter a number and check it is even or odd. Same way, start input number, check करना है. प्रोग्रामिंग में ऐसे ही तो करते हैं कि किसी कोई नंबर मॉड्यूल है तो मॉड्यूलस, यस, नंबर मॉड्यूलस 2 equals to 0 then print even else number is odd. even odd के लिए हमें क्या करना, हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना. अगर नंबर 2 से डिविजिबल होके रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा. यस, ये उसका pseudo कोड है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम जब एल्गोरिदम्स बनाते हैं, फ्लोचार्ट्स बनाते हैं, pseudo कोड्स बनाते हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. कोडिंग में कन्वर्ट करना मीन्स हमें किसी एक लैंग्वेज का यूज़ करना, से पाइथन जैसे आप पढ़ेंगे या थोड़ा आइडिया होगा तो आपको इसमें हमें हमारे पास कुछ इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं. आइए हम इसको सीखते हैं. In computer program, there are mainly three types of control statements: sequential statements, selection statement, and iterative statements. Sequential statement means a series of steps or statements that are executed in a specific order. एक के बाद एक के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जैसे कि पहले हमारे पास क्या होता था, एक कैसेट होती थी. कैसेट में हम पहला सॉन्ग सुनते थे, फॉरवर्ड करते थे. अगर थर्ड नहीं सुनना तो फॉरवर्ड करना, फोर्थ नहीं सुनना फॉरवर्ड, फिफ्थ सुनना, तो फर्स्ट से सेकंड की फॉरवर्ड करते हुए आना है. दिस इज सीक्वेंशियल मेथड. Selection. It determines two course of action depending upon the condition. A condition is given which will result in either true or false. Selection में क्या होगा, हमें सिलेक्ट करना है. अगर कोई एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हमने कुछ दिया, सपोज हमने बोला कि जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. यस, अगर दिल्ली भारत की कैपिटल है तो आप तो बोलोगे यस सर इट्स ट्रू.
तो उसके लिए हम उसको डिनोट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो ये हो गया सेलेक्टिव स्टेटमेंट। वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स। जैसे एग्जांपल है, to input age and check if age is eligible for voting or not. Yes. Input age is greater than or equals to 18। यहाँ पे देख रहे होंगे एज 18 से बड़ी है या नहीं। आप क्लियर देख रहा होगा, अगर एज 18, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी तरह हमें उससे ये पता लग जाए कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम सही चलेगा कि नहीं। तो ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट। बस आगे बढ़ते हैं। इटरेटिव या इटरेशंस, इसमें क्या होता है, हमें किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर हम स्टेप्स में करते हैं, सपोज हमें 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो हमें 10 बार से एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है पाइथन में, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो। बेटर क्या होगा, हमें एक ऐसा कुछ हमें मैजिकल स्टेटमेंट मिल जाए जिसमें कि हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट हेलो एक ही बार लिखें और वो हेलो 10 टाइम्स आ जाए, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं पाइथन में। से आप हमने लिखा प्रिंट डबल कोट्स में प्रिंट हेलो, डबल कोट्स में आएगा यस। हम फिर से इसको एंटर कर रहे, फिर से इंटरप्रिटेट किया, प्रिंट हेलो आया, अगेन हम इस पे गए, हेलो 3 बार किया, 3 बार हेलो। बेटर क्या होगा, एक कोड ऐसा कुछ मिल जाए जिसको मैजिकल कोड बोलना है। मैजिकल नहीं है लेकिन आप लोग इसको कर पाओगे। कुछ हमने लिखा, हो सकता है आपको अभी कुछ ये क्लियर नहीं होगा कि हमने क्या लिखा है। हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो देखिए अपने आप हमारे सामने हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 हेलो प्रिंट हो गया एक कोड से। तो ये क्या है, ये हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट्स है। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, उसका एक प्री डिफाइंड रूल है। क्या होता है, सपोज हमें हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि हमें 2 का टेबल सुनाओ, तो बच्चा कहाँ से सुनाना शुरू करता है, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे ही करते हैं ना। यस। तो बच्चा हमें 2 का टेबल सुनाता है 2 से 10 तक। तो उसने स्टार्ट किया 1 से और स्टॉप हुआ 2 10 सा। तो मीन्स उसने 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, हमें पता, बच्चे को पता है कि वो 1 से 10 तक है। वो 10 2 10 सा 22 11 सा 22 भी सुना सकता है, लेकिन स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसको पता है उसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है। तो बच्चे को पता है उसकी स्टार्टिंग का वैल्यू क्या है, कहाँ से उसे स्टार्ट करना है टेबल सुनाना, कहाँ पे खत्म करना है। और हर बार 2 1 सा 2 के बाद 2 2 सा 4 बोलेगा, ना कि 2 3 सा या 2 फिर 5 सा। यहाँ पे हमें पता है, ऐसा नहीं 2 मतलब 1 3 5 भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमें प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। तो जब भी हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या है तो समझते हैं। इनिशियल वैल्यू हमें बतानी होती है, कंडीशन बतानी होती है कि हमें कहाँ तक जाना है, जैसे जस्ट 2 10 20, और हर बार हमें कितने स्टेप्स फॉरवर्ड मूव होना है या बैकवर्ड मूव होना है, मीन्स 1 to 10 या 10 to 1। तो हर बार हमें 1 2 3 4 एक एक का इंक्रीमेंट चाहिए, 1 3 5 7 दो दो का इंक्रीमेंट चाहिए, बहुत कुछ है, समझेंगे इसको। तो यहाँ पे इटरेटिव टू प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100 जो हम आपको बता चुके हैं बना के पॉज से। तो आपको अब आपके सामने असाइनमेंट है, आपको ये असाइनमेंट बनाना है और बना के पोस्ट करना है। पॉज कर रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए। यस, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन। समझते हैं डिकम्पोजिशन होता क्या। Decomposition means large program can be tackled with divide and conquer। मीन्स अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड है, हमें उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सपोज इतनी पावर नहीं है हम उसको उठा के दूसरी जगह रख पाए।
तो हमारे पास मेथड क्या है, उसको काटे, छोटे छोटे पीसेस में करें, उठा के फिर उसको दूसरी तरह रख दें, डिवाइड एंड कॉन्कर। अंग्रेजों ने भी तो यही किया। यस। So decomposition happens when we break it down a problem into small parts so that we can both understand and manage the problem better. For large complex problem, we can then analyze, solve and design the smaller part of the program. Then we can together form a solution. यही तो होता है रेलवे में, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, आसान नहीं है एक बंदा कर ले या एक प्रोग्राम से बन जाए। प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया है, उस डिवीजन में जो डिवाइड किए गए उसके फिर फर्दर डिवीजन किए गए, फिर फर्दर डिवीजन, फिर फर्दर डिवीजन और फर्दर डिवीजन डिकम्पोजिशन करते करते का एक लास्ट स्टेप आया जहां से उन्होंने एक एक फ्रेज को, एक एक पेज को, एक एक प्रोग्राम को, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सॉल्व करके उन्होंने जब सारी सॉल्यूशंस मिल गए हैं तो उन्होंने एक रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवे और किसी भी कंट्री की रेलवे डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है? डिफरेंट पीपल कैन वर्क ऑन डिफरेंट सब प्रोग्राम्स। Parallelization can be possible. Maintenance is easier. Disadvantage भी है. The solution to subprogram might not be combined to solve a original problem. Poorly understood problem are the hard to decompose. अगर हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझा ही नहीं तो हम अच्छे से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। नीड्स क्लियर कर चुके हैं, फिर भी आप इसको पढ़िएगा, हम इसका लिंक आपको शेयर करेंगे। डिकम्पोजिशन का बिग प्रॉब्लम पार्ट ऑफ 1, पार्ट ऑफ 2, सब डिविजन क्लियर कर चुके हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बुक्स, मेंबर्स, इश्यूज, यस ऐसे ही तो होता है। ये स्टूडेंट्स से बढ़ के कोई नहीं समझता क्योंकि लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स इश्यू कराते हैं। तो लाइब्रेरी टीचर कैसे करता होगा? बुक्स है उनके पास, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको इश्यू करना आसान नहीं है। तो क्या बुक्स बुक्स क्या होता है? बुक्स ऐड होती है, एडिट होती है, डिलीट होती है, सर्चिंग होती है। बुक के ऊपर यही काम कर सकते हैं। मेंबर्स क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, एडिट डिलीट कर सकते हैं। इश्यूज, बुक इश्यूज है, बुक रिटर्न होती है। यस। तो हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट को ऐसे कुछ डिवाइड किया। यार बहुत से बुक्स हैं, बुक्स आएगी तो बुक्स का वो लाइब्रेरी सर को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस आएगा बुक्स में, राइटर में, उसकी प्राइस में, तो उनको एडिट भी करना पड़ेगा। अगर बुक्स खराब हो गई वहां से कंप्यूटर रिकॉर्ड से अपने हटाना उनको टीचर को, तो डिलीट करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स आ गया बुक को लेने के लिए, सर मुझे बुक चाहिए, तो उनको सर्च करना पड़ेगा लाइब्रेरी में बुक है कि कोई ऑल स्टूडेंट लेके गया। तो हमने क्या किया? डिकम्पोजिशन किया अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये छोटा सा थ्योरी पार्ट आपको समझ आया होगा। मेन समझना आपको ये है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को अगर हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई प्रोग्राम, कोई काम जो हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं, जो अभी तक मैनुअल हो रहा है, हम कैसे करेंगे? तो हमें उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट हम कोडिंग नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करना पड़ता है जिससे हमें कि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो आज हमने एल्गोरिथम्स देखा, सीडियो कोड देखे, फ्लो चार्ट्स देखा। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आई होप सो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। कुछ डाउट्स आता है तो आप पक्का डाउट्स हमें भेज सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।